लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? व्हाट वाज द टॉपिक लास्ट टाइम? क्या था टॉपिक? व्हाट वाज टॉपिक? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ऑफ अपर लिम्ब। कौन कौन सी थी? वन बाय वन आप बताओ, इधर से कोई बताओ। टेनिस एल्बो एंड सॉरी एंड वो टॉपिक थे। ठीक है, तो नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम अगेन इन द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और syndrome in the upper limb. Carpal tunnel syndrome described in 1854. Carpal tunnel syndrome described in 1854 by James Paget, also known as tardy median nerve palsy. Carpal tunnel syndrome is the most common clinical entity affecting 10% of the population. Okay, so it's affect the 10% population. Consists of motor, sensory, motor, sensory, vasomotor and trophic symptom in the hand, which we will read one by one. So it consists of motor, sensory and vasomotor trophic symptom caused by compression of the median nerve in the hand or wrist. Motor changes, ape third deformity, ape, loss of opposition of the thumb, loss of opposition of the thumb. Thinner muscles are supplied by median nerve, hypothinner by ulnar nerve, dorsal by radial nerve. So compression of the median nerve at the wrist, so atrophy of the thinner muscle, so loss of opposition of the thinner muscles, opposition of the thumb, and index and middle finger lags behind while making fist. So lumbricals supplied by median nerve, first and second. These are motor changes. Then vasomotor changes due to denervation of the short nerves, small nerves, demyelination. So skin area with sensory loss is warmer due to dilatation, arterial dilatation. The skin will be warmed and dry. Trophic changes, long standing cases of paralysis lead to dry and scaly skin. So dry and scaly skin. Nail cracks easily due to atrophy of pulp of fingers. Now predominantly patient will come to you with the complaint of tingling and numbness in the typical medial nerve distribution in the radial 3.5 digit. Okay, so patient ऐसे आएगा आपके पास, tingling and numbness on the median nerve distribution. Now what is carpal tunnel? Carpal tunnel is a cylindrical cavity connecting the volar forearm and the palm. So volar forearm and the palm connecting. So carpal tunnel lies here at the wrist. 9 tendon and 1 nerve passes through this tunnel. So this is tunnel at the wrist joint. So this is the area where carpal tunnel. Okay, so this is the corner section. This is transverse carpal ligament. This is the roof. So if you will see in axial section, this is the carpal tunnel ligament. Sorry, transverse ligament, transverse carpal ligament. Beneath this is carpal tunnel. Consists of 1 nerve and 9 tendons. 9 tendons of the volar side, flexor. And these are the bones, carpal bones. Okay, so roof, floor, median lateral by bone, full floor is again by bone और roof by transverse carpal ligament. ये दिख रहा है? ये नीला नीला जो है ये transverse carpal ligament है जो यहाँ दिख रहा है आपको. इसके नीचे ये nerve है, median nerve and these are the tendons. ये यहाँ से जा रहे हैं, इधर निकल रहे हैं. So, passing through the volar aspect. Okay. तो ये कार्पल टनल है. तो ये मीडियन नर्व का कंप्रेशन कब होगा? या तो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट ठीक हो जाएगा, बोन्स का फ्रैक्चर हो जाएगा, इसमें फ्लूइड बढ़ जाएगा. तो दीज आर द कॉजेज ना, यही हो सकते हैं. दिस इज ए क्लोज कैविटी. ये सब क्लोज कैविटी है. 9 टेंडन एंड 1 नर्व क्लोज कैविटी है. तो यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ेगा, आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर, तो मीडियन नर्व कंप्रेस होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल नर्व है, ओनली मीडियन नर्व.
So what are the risk factor? It is commoner in females with diabetic, hypothyroidism, obesity, in pregnancy, rheumatoid arthritis and gout. Now pain is deep aching, throbbing, occur diffusely in the hand and radiate up to the forearm. Cervical जो पेन होता है that start from neck down to the arm. इसमें क्या होगा, पेन यहाँ से स्टार्ट होगा एंड दैट विल रेडिएट अपवर्ड. ओके, तो कार्पल टनल सिंड्रोम में थिनर एट्रोफी अगेन यूजली सीन लेटर इन द कोर्स ऑफ नर्व कंप्रेशन. थिनर एट्रोफी लास्ट में आएगी. क्लासिकल कंप्लेंट फ्रॉम द पेशेंट बॉदर्ड बाय कार्पल टनल सिंड्रोम इज पैरेस्थीसिया एट नाइट. नाइट में पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, पेन होगा, पैरेस्थीसिया होगा. नाइट, टिपिकली इन द नाइट. टिपिकल टिंगलिंग एंड नमनेस इन द मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंडरी सिम्टम इज पेशेंट जब भी होल्डिंग ए बुक और न्यूज़पेपर तो उसको पैरेस्थीसिया होगा. क्यों? रिस्ट फ्लेक्शन होगा, सॉरी फ्लेक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा. ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या होगा, कार्पल टनल में जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, कंप्रेस होगी नर्व्स. तो न्यूट्रल पोजीशन में ठीक रहेगा. जैसे ही आप इस पोजीशन में करोगे, इस पोजीशन में करोगे तो पेन होगा ड्यू टू प्रेशर ऑफ द मीडियन नर्व. सो ड्राइविंग, आप ड्राइव कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, स्कूटी या कार या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो. कार्पल टनल अकर इन प्रेग्नेंट वुमेन. ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से. ठीक है, जैसे डिलीवरी होती है रिजॉल्व हो जाता है सिम्टम. डायग्नोसिस बाय मेनली फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज. साइंस, टिनल साइन. टिनल साइन क्या होता है? परकशन एट द मीडियन नर्व. अगर वो कंप्रेस्ड होगी तो आपको पैरेस्थीसिया फील होगा पेशेंट को. ठीक है, तो दिस इज टिनल साइन. फैलन साइन, रिस्ट को फ्लेक्शन करना है फॉर 60 सेकेंड, रिस्ट इन फ्लेक्शन. ठीक है, तो पेशेंट को सिम्टम होंगे टिंगलिंग इन नमनेस. दिस इज फैलन साइन. फैलन टेस्ट. वीनस एंगोर्जमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कफ ऑन द अपर आर्म. यहाँ पर ब्लड कफ डालेंगे अपन, कफ लगाएंगे बीपी वाला, तो वीनस एंगोर्जमेंट होगा, वीनस पुलिंग होगी, ब्लड यहीं रुक जाएगा. तो क्या होगा? फ्लूइड ओवरलोड. अगेन कंपार्टमेंट प्रेशर, तो पेन होगा, पैरेस्थीसिया होगा. नाउ नेक्स्ट इज डर्कन टेस्ट. इसमें क्या करते हैं, मीडियन नर्व पे कंप्रेशन लगाते हैं, जहाँ मीडियन नर्व है, फॉर 30 सेकेंड्स. ठीक है, तो अगेन सिम्टम आएंगे नमनेस एंड टिंगलिंग फॉर 30 सेकेंड्स. नाउ डर्कन टेस्ट इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंड मोर सेंसिटिव. दिस इन सब टेस्ट में डर्कन टेस्ट आपको याद रखना है, दैट इज मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव. 90% स्पेसिफिक, 87% सेंसिटिव. नाउ इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडी में ये आएगा नर्व कंडक्शन स्टडी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राम. नर्व कंडक्शन स्टडी में क्या करेंगे, नर्व कंडक्शन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ नर्व टू कंडक्ट द मोटर एंड सेंसरी फाइबर. ठीक है, मोटर एंड सेंसरी पोटेंशियल को कैसा वो नर्व का पास कर रही है, उसको अपन देखते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी से. वेलोसिटी क्या है नर्व कंडक्शन की. तो इसमें नर्व कंडक्शन स्टडी में अगर लेटेंसी, लेटेंसी मींस अगर लैग है, अगर कंप्रेस्ड है नर्व तो वो काम कम करेगी, तो लैग हो जाएगा. तो लैग उसमें मिली सेकेंड्स में आता है. तो लैग अगर मोर देन 4.5 मिली सेकेंड है तो मोटर में आएगा और सेंसरी में मोर देन 3.5 मिली सेकेंड. ठीक है, ये जब समझने के लिए याद नहीं करना है इसको. ठीक है, जिस पता होना चाहिए एनसीवी में क्या होता है. अगर नर्व कंप्रेस होगी तो लेटेंसी होगी, लैग होगा, डिले हो जाएगा नर्व में. तो नर्व में जो फंक्शन है ना वो डिले हो जाएंगे. जैसे आप फ्लेक्शन करोगे तो धीरे धीरे फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन धीरे धीरे होगा. ठीक है, सो दीज आर द इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडी. ठीक है, नर्व कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी. इलेक्ट्रोमायोग्राफी में अपन स्टडी करते हैं व्हाट इज द मसल एक्शन पोटेंशियल, मसल की फंक्शनिंग कैसी है. ठीक है, तो नर्व की थी, मसल की. जो मीडियन नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रही है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट मसल. तो नर्व कंप्रेस होगी तो मसल भी वीक हो जाएगी. ठीक है, तो अपन देखते हैं दोनों इससे, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी और नर्व कंडक्शन स्टडी और क्या था, इलेक्ट्रोमायोग्राफी. ठीक है, दीज आर टू स्पेसिफिक. देन एमआरआई. एमआरआई किस लिए देखते हैं अपन, अगेन सॉफ्ट टिश्यू स्टडी करने के लिए, व्हाट इज द मसल एंड नर्व का क्या स्टेटस है. लेकिन मेन जो इसमें मॉडलिटी रहती है डायग्नोसिस की होती है फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडी. ट्रीटमेंट अगेन कंजर्वेटिव एंड ऑपरेटिव. कंजर्वेटिव किसको करना है,
इंडिकेशन है एज मोर देन 50 ईयर, ड्यूरेशन लॉन्गर देन 10 मंथ्स, पेशेंट को कंप्लेंट है मोर देन 10 मंथ्स से, या एज मोर देन 50 ईयर है, कांस्टेंट पैरेस्थीसिया है, स्टेनोसिंग फ्लेक्सर टीनोसाइनोवाइटिस है, एग्रीवेटिंग फैक्टर है, ठीक है। अगर साथ में उसको टीनोसाइनोवाइटिस भी है तो सिम्टम ज्यादा एग्रीवेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड पॉजिटिव फेलन टेस्ट, ठीक है। फिर कार्पल टनल सिंड्रोम कैन बी डिवाइडेड इन अर्ली, इंटरमीडिएट, एडवांस एंड एक्यूट स्टेज, ठीक है। पेशेंट विद अर्ली एंड माइल्ड सिम्टम रेस्पॉन्ड टू स्टेरॉइड इंजेक्शन, ठीक है। जो अर्ली और माइल्ड स्टेज में आते हैं उनको अपन स्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। डोज विद इंटरमीडिएट और एडवांस स्टेज में आएंगे उसकी क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी। सर्जरी में क्या करेंगे, कार्पल टनल रिलीज। नॉन ऑपरेटिव में मेन स्टे ऑफ नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट इस रात को उसको पेन होगा, नॉक्टर्नल स्प्लिंटिंग करेंगे, पेशेंट ऐसे नहीं करे, फ्लेक्शन नहीं करे तो उसको स्प्लिंट दे देंगे, तो रात में वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा रिस्ट, ठीक है, तो उसको पेन नहीं होगा, पैरेस्थीसिया नहीं होगा। पर्टिकुलरली फॉर ये किसको देंगे, नाइट स्प्लिंट, जिसको माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम होंगे, ठीक है। कब तक देना है, पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक, 4 to 6 वीक में परमानेंट रिलीफ हो जाता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट। सो नॉक्टर्नल ब्रेस, ठीक है, नॉक्टर्नल स्प्लिंटिंग। उसके अलावा सपोर्टिव एनसाइड्स इंजेक्शन, अल्ट्रासाउंड एंड नर्व ग्लाइडिंग और स्ट्रेचिंग थेरेपी एंड विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, ठीक है, ये सब चीजें अपन दे सकते हैं, सपोर्टिव है। A mild symptom have been present and there is no thinner muscle atrophy, injection of hydrocortisone, इंजेक्शन किसका देंगे स्टेरॉइड में, हाइड्रोकोर्टिसोन का, ठीक है। इंजेक्शन इस किसको देंगे, डिजीज ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम हो, क्योंकि 1 साल से कम क्यों, क्योंकि मसल की एट्रोफी हो जाएगी, नर्व की एट्रोफी हो जाएगी, अगर मोर देन 1 ईयर आपके वो रहेगा तो कंप्रेशन रहेगा, ठीक है। So steroid that will not work in that condition. No sensory deficit, no marked thinner wasting, ठीक है। वही इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं, सिंगल डोज ऑफ कॉर्टिसोन विद स्प्लिंटिंग फॉर 3 वीक्स, 3 वीक में 1 इंजेक्शन लगेगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट कब कब करना है, परसिस्टिंग सिम्टम, एडवांस स्टेज, ठीक है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग। अगेन सर्जिकल प्रोसीजर में क्या करेंगे, जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट था ना, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, इसको यहां से काट देंगे बीच से, कट, सो इट विल रिलीव द इनसाइड प्रेशर, तो नर्व पे जो प्रेशर होगा वो हट जाएगा, इसी को बोलते हैं कार्पल टनल रिलीज, ठीक है। तो कार्पल टनल इज कंप्लीट। कुछ पूछना है, नेक्स्ट इज फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट with pain and stiffness that cannot be explained on the basis of joint incongruity, means joint ठीक है but there in spite of that there will be pain and stiffness in the joint, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं इसको, एडेसिव कैप्सुलाइटिस इन्वॉल्व द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट, ठीक है, एडेजेंस इन द कैप्सूल ऑफ ह्यूमरस जॉइंट और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। अगेन इंसिडेंस इज 2% मोर कॉमन इन वुमेन, bilateral in 10 to 40% cases, ठीक है। दिस इज शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ये ह्यूमरस एक्रोमियन, सॉरी क्लेविकल एक्रोमियन, ये डेल्टोइड मसल है, दिस इज स्कैपुला, ठीक है। तो इसके बाहर क्या क्या होता है, बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन्स, कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन। अच्छा, व्हाट इज बर्सा, बर्सा क्या होता है, बर्सा क्या फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, क्या करता है, उसका क्या फंक्शन होता है, जहां भी दो बोन में मूवमेंट होगा जॉइंट में तो दैट इज एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेशन की जॉइंट है। जैसे ये दिस इज एक्रोमियन एंड दिस इज ह्यूमरस, अब यहाँ जब भी मूवमेंट होगा ह्यूमरस ऐसे रोटेट होगी ऊपर, तो यहाँ भगवान ने बर्सा दे दिया,
ठीक है, फ्लूइड फिल्ड सैक जो उसको ड्राई नहीं होने देगा, फ्रिक्शन नहीं होगा उसमें, फ्रिक्शन कम करेगा। तो ऐसे बरसा सब टेंडिनियस भी होते हैं, सब डेल्टो, सब मसल भी, सब मस्कुलर भी होते हैं, बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। एंड व्हाट इज लेब्रम? हेलो, हाँ हाँ, ठीक ठीक। लेब्रम एक्ट एज ए मेनिस्कस ऑफ नी जॉइंट। मेनिस्कस जानते हो नी जॉइंट में? तो लेब्रम इज विल एक्ट लाइक दिस। लेब्रम अटैच होता है इसमें स्कैपुला ग्लिनोइड पे, ठीक है, और ट्रायंगुलर शेप में होता है। हेलो, हाँ बता, ठीक ठीक है। सो फ्रोजन शोल्डर इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी, नो इंसाइटिक इवेंट, नो नॉर्मल प्लेन रेडियोग्राफ एंड नो फाइंडिंग अदर देन लॉस ऑफ मोशन। तो एक्सरे में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, एक्सरे में प्लेन रहेगा प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर। सेकेंडरी में सेकेंडरी सिम्टम होंगे, मतलब कुछ और एक्टिविटी होगी, कोई और पैथोलॉजी होगी, उसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट। तो प्रेसिपिटेटिंग ट्रॉमेटिक इवेंट। अब प्राइमरी इज ऑफ टू टाइप, इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक। इंट्रेंसिक मीन्स फैक्टर विद इन द पेशेंट, फीमेल 40 between 40 and 60 year of age, female and diabetic. Extrinsic, immobilization, किसी को फ्रैक्चर हुआ है शोल्डर का आसपास, ठीक है, अराउंड द शोल्डर, तो पेशेंट को इमोबिलाइज कर दिया आपने, तो उससे स्टिफनेस होगी। सो दैट इज ऑल्सो ए रीजन ऑफ फ्रोजन शोल्डर। सो दीज आर द इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक टाइप ऑफ प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर। सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या होगा, कोई भी डिजीज हो सकती है, रोटेटर कफ डिजीज, फ्रैक्चर, calcific tendinitis, shoulder surgery, osteoarthritis, cervical spine. These are the associated injury which resulting in pain and stiffness of the shoulder joint. In patient of CVA, head injury, MI. Clinical feature में क्या, इसमें 3 स्टेज होती हैं, 3 stages of primary frozen shoulder, secondary में नहीं होती है। What are the 3 stages? Pain, stiffness and thawing. फर्स्ट स्टेज इज पेनफुल स्टेज दैट रिमेन्स फॉर 2 to 9 months। पेन होगा इसमें एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोशन। ये याद रखनी है, 3 स्टेज हैं, 2 to 9 months फर्स्ट स्टेज, इंसीडियस ऑनसेट विद प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोशन। सेकेंडली, इन सेकेंड स्टेज दैट विल रिमेन फॉर 4 to 12 months, अगेन पेन विद प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोशन एंड विद मसल एट्रोफी। इन थर्ड स्टेज थ्रोइंग that will remain for again 6 to 9 months। इसमें क्या होगा, पेन सबसाइड हो जाएगा पेशेंट को, ओनली देयर विल बी स्टिफनेस रहेगी, वो भी मोशन ग्रेजुअली रिटर्न्स 1 to 3 years। तो फर्स्ट 2 स्टेज इज पेनफुल, थर्ड स्टेज इज पेनलेस, बट देयर विल बी मोर स्टिफनेस। फर्स्ट स्टेज इज इंसीडियस, पेन कब होगा, नाइट में। पॉइंट ऑफ टेंडरनेस बाइसेपिटल ग्रूव में एसोसिएटेड विद अपर बैक एक। तो 3 चीज याद रखनी है, नाइट में पेन होगा ज्यादा, पॉइंट ऑफ टेंडरनेस बाइसेपिटल ग्रूव एंड बैक पेन एसोसिएटेड हो सकता है। सेकंड स्टेज में क्या होगा, देयर विल प्रोटेक्टिव मस्कुलर स्पाज्म, ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटी लाइक ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, ये डिफिकल्टी हो जाएगी सेकंड में, एंड लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन। सेकेंड स्टेज में हॉलमार्क है टर्मिनल पेनफुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन। मीन्स अगर आप एक्सटर्नल रोटेट कराएंगे तो लास्ट में जाके आपको पेन होगा, इंटरनल रोटेशन कराएंगे तो लास्ट में जाके पेन पेशेंट कंप्लेन करेगा। तो टर्मिनल पेनफुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव मीन्स जो पेशेंट खुद करता है, पैसिव जो एग्जामिनर करके देखता है, ठीक है, दैट इज पैसिव। थर्ड स्टेज, इसमें क्या हो, पेन कम हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिजॉल्व और 4 to 9 months without any treatment। Diagnosis: internal rotation restricted up to a point where patient cannot touch his beyond his sacrum। तो पीछे sacrum को टच नहीं कर पाता। तो internal rotation, this motion internal rotation will be restricted। 90 डिग्री से ऊपर abduction नहीं होगा, और external rotation less than 50%। ये बुक में रिटर्न है, not definitive, but these are the criteria to diagnose frozen shoulder। Plain X-ray is normal,
एक्सरे अपन क्यों करवाएंगे? तो रूल आउट ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम डिपॉजिट, सिस्टिक चेंज, और सेकेंडरी जो फ्रोजन शोल्डर की जो कंडीशन है उसको रूल आउट करने के लिए। ओके। आर्थ्रोग्राफी, आर्थ्रोग्राफी क्या करेंगे? जॉइंट के अंदर फ्लूइड इंजेक्ट करेंगे, फ्लोरोस्कोपिकली एक्सरे से कर, सियाम के थ्रू या फिर एमआरआई के थ्रू। 50% रिडक्शन इन जॉइंट फ्लूइड, दैट इज अ डायग्नोस्टिक। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। नॉर्मली दिस इज द नॉर्मल आर्थोग्राम। जो फ्लूइड है यहाँ नीचे तक जाएगा आपके, ठीक है, अप टू द डेल्टोइड अटैचमेंट। जबकि एडेसिव है, कैप्सूल टाइट हो जाएगा, ठीक है, तो स्पेस कम हो जाएगा, तो जो जॉइंट फ्लूइड है वो ज़्यादा सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इट विल कन्फाइंड। तो दिस इज फ्रोजन शोल्डर। नॉर्मल शोल्डर में एमआरआई में एक्सिलरी रिसेस दिखेगी, या अगर एडेसिव कैप्सुलाइटिस हो जाएगा, कैप्सूल में फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो दैट विल टेक अवे, दैट विल नॉट विजिबल। एमआरआई ठीक है, इट्स नॉट एसेंशियल फॉर यू। ट्रीटमेंट इज अगेन फ्रोजन शोल्डर इज सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है, नो स्टैंडर्ड रेजिम इज देयर। ओके। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज मेनस्टे ऑफ थेरेपी, ओनली रिस्ट्रिक्टिव केसेस सब्जेक्ट टू ऑपरेटिव इंटरवेंशन। ऑपरेशन बहुत ही कम रेयर केस में करते हैं। कंजर्वेटिव में क्या है? ओरल एनाल्जेसिक, अगेन एनसाइड्स, कोडीन, ठीक है, या फिर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के साथ में एनाल्जेसिक एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। बस so first is NSAIDs and codeine. Second is intra-articular injection of steroid with local analgesic and active range of motion. सेकेंड इज इन्फिल्ट्रेशन डिब्राइडमेंट। क्या करेंगे इसमें? जॉइंट कैप्सूल को एक्सटेंड करेंगे, कंप्रेस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया उसमें, तो उसको एक्सटेंड करना है कॉन्ट्रास्ट मटेरियल से, ठीक है। उसके साथ में लोकल एनेस्थीसिया, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। तो कैप्सूल की जो एडिशंस है उसको खोलने के लिए उसको अपन एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एंड फिजियोथेरेपी, पैसिव, एसेसरी एंड थर्मोथेरेपी, ये सब आप जानते हो, हॉट फर्मेंटेशन, ठीक है। पेंडुलम एक्सरसाइजेज लाइक दिस, शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइज, हैंड टू बैक पोजीशन, ये सब फिजियोथेरेपी का आपको पता है, यू आर बेटर नो, ठीक है। पुली एक्सरसाइजेज, ये सब फ्रोजन शोल्डर में कराते हैं अपन। देन मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, अगर इन सब से नहीं आता है तो जीए में अपन मैनिपुलेशन करते हैं पेशेंट को जीए देके, ठीक है। ये सेम फोर्स मैनिपुलेशन, अगेन इमीडिएट एक्सरसाइज, काउंसलिंग, एब्डक्शन, ऑर्थोसिस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में अगेन जीए में अपन क्या कर सकते हैं? जीए में रिड्यूस करते हैं उसको, मैनिपुलेट करते हैं, तो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, रोटेटर कफ इंजरी, ट्रैक्शन नर्व इंजरी, ये होने के चांस रहते हैं। सो बेटर टू अवॉइड दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन लास्ट बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी कुछ पूछना है?